Now let's see next question. Now next question में probability distribution is not given, whereas in previous question probability distribution was given. So this is the difference. So let's see how to solve such questions. Now it is find the mean. तो बच्चों मीन का मतलब भी एक्सपेक्टेड वैल्यू ही होता है. ओके, सो मीन मतलब वी नीड ई ऑफ एक्स ओनली ऑफ नंबर ऑफ हेड्स. नाउ सी, ये जो ऑफ के बाद दिया है नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन. सो दिस थिंग इज नथिंग बट इट इज द रैंडम वेरिएबल. इस तरह से रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है. ओके, मतलब दिस इज योर एक्स, इसको आप एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड वी नीड मीन ऑफ दिस थिंग, मतलब वी नीड ई ऑफ एक्स. तो अभी जब ये रैंडम वेरिएबल है तो वी नो दैट रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज जो है वो आती है रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स में से. तो यहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट इज, it is clearly mentioned that number of heads in 3 tosses of a fair coin, means random experiment is of fair coin is tossed 3 times. So this is the random experiment. Okay, so now whenever a coin is tossed 3 times, we know the sample space. हमें पता है sample space क्या होगा. Sample space will contain like elements like H, 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 all 3 heads. Then outcomes with 2 heads, outcomes with 1 head, and outcomes with no head means all tails. So इस तरह से random experiment के ये सब sample space होता है. Now will define x, means this thing is represented by x. Let x be the number of heads in 3 tosses of a coin. मतलब when coin is tossed 3 times तो x क्या है, number of heads. So your x will take values. देखिए क्या क्या values लेगा अभी x, number of heads है, right? तो x can take values like जहां पर तीनों head है तो 3, all the outcomes with 2 heads, all the outcomes with 1 and no head. तो ये जो x है वो value लेने वाला है 0, 1, 2, 3. Outcomes with no head, number of outcomes with 1 head, with 2 heads and 3 heads. तो ये जो है x इस तरह से values लेगा. Now for this x जो ये values ले रहा है, we need probability distribution. Okay, probability distribution हम find out कर सकते हैं बहुत easily इसके लिए. So probability distribution is, so हम probability distribution किस तरह से लिखते हैं, x and corresponding probabilities. So x and corresponding probabilities, तो सबसे पहले x की वैल्यू है 0, 1, then 2, then 3. Now corresponding to 0, जहां पर कोई भी हेड नहीं है, ऐसे कितने आउटकम्स होंगे, सिर्फ एक आउटकम होगा जो कि होगा t t t. तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/8. 8 is the total number of outcomes. Now with one head के लिए there will be 3 outcomes. So probability is 3/8. For 2 heads again 3 outcomes. So again probability is 3/8, and for 3 heads there is only 1 outcome, so probability is 1/8. So this is the probability distribution. ये है probability distribution for the given random variable. Now देखो बच्चों, अभी हमें mean find out करना है, मतलब expected value find out करनी है. So expected value which is e of x, उसका फॉर्मूला होता है x इंटू पी ऑफ एक्स, या आप यहाँ पर एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पर हमें एक और कॉलम ऐड करना होगा जो होगा x इंटू पी ऑफ एक्स, एंड उसका समेशन फाइंड आउट करेंगे तो आपको e ऑफ x दे देगा. सो मल्टीप्लाई, व्हेन वी विल मल्टीप्लाई देम, दिस इज 0, दिस इज 3/8, दिस इज 6/8, एंड हियर इट इज 3/8. देखो बच्चों, इसको हम जो है रिड्यूस फॉर्म में नहीं लाएंगे बिकॉज हमें इसको ऐड करना है, और ऐड करने के लिए वी नीड सेम डिनोमिनेटर्स. ओके, तो इसीलिए हम इसे रिड्यूस फॉर्म में नहीं लाते हैं. तो जब हम इसे ऐड करेंगे दिस विल बी 12/8. सो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो है 12/8. अब इसे आप रिड्यूस फॉर्म में ला सकते हो.
this will be 3/2, and 3/2 is simply 1.5. So this is the expected value when this random variable is number of heads in 3 tosses of a fair coin. So this is the next question, where again we need E of x, and it is two numbers are selected at random. This is the random experiment, and those two numbers are selected without replacement from the set of first 6 पॉजिटिव इंटीजर्स. तो बच्चों फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो है 1 2 3 4 5 6. एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है कि ये जो 6 पॉजिटिव इंटीजर्स है इसमें से कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स सिलेक्ट किए जा रहे हैं, बट किस तरह से सिलेक्ट किए जा रहे हैं? इट इज विदाउट रिप्लेसमेंट. विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है विदाउट रिपीटेशन. मतलब 1, अगर हमने फर्स्ट टाइम 1 सिलेक्ट किया है तो नेक्स्ट टाइम 1 सिलेक्ट नहीं होगा. मतलब 1,1 ऐसी वाली आउटकम ये रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस में नहीं आएगी. ओके, एंड देन x डिनोट द लार्जर ऑफ द टू. तो x किस तरह से डिफाइन किया है कि x जो है वो लार्जर ऑफ द टू. दो नंबर्स जो हमने सिलेक्ट किए हैं उसमें से जो सबसे बड़ा है वो दैट इज द x. ओके, सो लेट्स सी हाउ वी कैन स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. तो देखिए बच्चों, जो सॉल्यूशन है वो हम कुछ इस तरह से शुरू करते हैं. हम सबसे पहले लिखते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? टू नंबर्स आर selected. Now it is in question, it is given कि at random and without replacement. So इसको थोड़ा हम शॉर्ट में लिखेंगे. From the first 6 positive integers. So देखिए यहाँ पर इजीली हम सैम्पल स्पेस लिख सकते हैं, क्योंकि सैम्पल स्पेस जो है वो बहुत इजी, मतलब आपके लिए बहुत इजी बना देगा प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करना. तो जो सैम्पल स्पेस होगा वो कुछ इस तरह से होगा. 1,2 बिकॉज इट इज विदाउट रिप्लेसमेंट. 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 लाइक दिस. उसके बाद हो सकता है 2, सी इट इज सिलेक्शन. तो सिलेक्शन है, सिलेक्शन में ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट. तो 2,1 हम नहीं लेंगे क्योंकि 1,2 ऑलरेडी है यहाँ पर. 2,2 भी नहीं लेंगे बिकॉज इट इज विदाउट रिपीटेशन. 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. इसी तरह से फिर हो सकता है 3 से शुरुआत हो सकती है, बट 3,1 हम नहीं लेंगे बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी काउंटेड है. 3,2 भी नहीं लेंगे क्योंकि 2,3 है. 3,3 भी नहीं ले सकते. तो 3,4, 3, 5, 3, 6. देन अगर हम 4 से स्टार्ट करते हैं तो 4,1, 4,2, 4,3, 4,4 हम नहीं लेंगे. 4,5, 4,6 एंड उसके बाद जो है इट इज 5 वाली टर्न. 1 से लेके 2, 3, 4, 5 नहीं लेंगे. डायरेक्टली इट इज 5,6 बिकॉज इट इज विदाउट रिप्लेसमेंट एंड सिलेक्शन है तो ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट. सो ये हो गया आपका सैम्पल स्पेस. एंड सैम्पल स्पेस में अगर आप काउंट करोगे तो देखो कितने आउटकम्स है. 2, 3, 4, 15 outcomes are there in sample space. So this is n of s. Now we will proceed with the x. अब जो x है वो x क्या है? It is the larger of the two numbers. मतलब दोनों नंबर्स में से जो ग्रेटर है वो x की वैल्यू है. तो देखिए अब जैसे ये पहली आउटकम है 1,2, तो इसमें लार्जर कौन है? 2, देन 3, देन 4. मतलब 1 इज, जो ये x है वो 1 वैल्यू कभी नहीं लेगा बिकॉज 1 इज द स्मॉलेस्ट आउट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स. सो x विल टेक वैल्यूज 2, 3, 4, 5, 6. ओके, नाउ वी विल फाइंड अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरह से लिखते हैं? x एंड करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी. तो x जो है वो वैल्यू ले रहा है 2, 3, 4, 5, 6. सो नाउ p ऑफ x. नाउ व्हेन x इज 2, मतलब 2 इज द लार्जर. तो इन हाउ मेनी आउटकम्स 2 इज द लार्जर? इन ओनली 1 आउटकम 2 इज द लार्जर. तो x विल टेक वैल्यू
1/15. Why 15? Because total number of outcomes is 15. Then 3 is the larger. Now 3 is larger in these two outcomes. So it is 2/15. Then 4 is larger. देखो 4 is larger in these many outcomes. 1, 2, 3. So it is 3/15. Now 5 is larger. देखो 5 कितनी outcomes में larger है? 1, 2, 3, 4. So 4/15. Now 6 is larger. 1, 2, 3, 4, 5. So in 5 outcomes 6 is larger. So इस तरह से ये probability distribution होगा. Now we need E of x. तो E of x के लिए जो है हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है E of x का. E of x is simply summation x p of x या फिर xi into p of xi, जिस तरह से भी आप लिखना चाहें. So वो फाइंड आउट करने के लिए we need to add one column which is xp of x. तो xp of x इसको मल्टीप्लाई करना होगा. 2/15, 6/15, 12/15, 20/15, 30/15. देखो बच्चों, मैंने आपको कहा था कि हम इन्हें रिड्यूस फॉर्म में नहीं लाते हैं बिकॉज हमको इनको ऐड करना होता है. तो अगर हम डिनोमिनेटर को सेम रखते हैं तो ऐड करना ईजी है. सो दिस विल बी 20, 40. 40 + 30 इज 70. 70/15. So your summation of x p of x is 70/15. If you want you can bring it in decimal form. डेसिमल में आप ला सकते हो. तो अगर हमको इसे डेसिमल में लाना है तो दिस विल बी 15, 4 = 60. तो 10 रिमेनिंग. फिर आप 100 लोगे तो इट विल बी 6 एंड इट विल बी रिकरिंग. सो आप यहाँ पर 4.67 राउंड ऑफ करके इसे लिख सकते हैं. सो एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 4.67. So this is how we solve such questions whenever expected value is asked, and this is a kind of word problem you can say. Okay, so thank you so much. Here we had seen how to find expected value and variance of discrete random variable, जिसमें कि हमने दो तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए. दो तरह के क्वेश्चन कौन से थे? जहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था. तो जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तो थोड़ा आसान हो जाता है एक्सपेक्टेड एंड वेरिएंस निकालना. एंड फिर हमने क्वेश्चन देखे जहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है, रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट भी बताया गया है. थैंक यू सो मच. Hello students, today we will see very important concepts of probability distribution, and under that we will be seeing expected value and variance of a discrete random variable, and some questions also we will be solving under this. So before solving questions, let's see what are the formulae and what is the concept. So as far as this discrete random variable is concerned, in my previous video I had already solved problems and कॉन्सेप्ट भी बताया हुआ है रिलेटेड विद डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, दैट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम दो नए कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ एक्स. सो इफ एक्स इज द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो वी नो दैट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कुछ इस तरह से दिया जाता है. दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. नाउ if this is the probability distribution, then expected value which is represented by E of x, this is called expected value of x. This is also called mean. तो क्वेश्चन में जो है वो आइदर एक्सपेक्टेड वैल्यू हो सकता है या मीन हो सकता है. तो अगर मीन भी है तो हम सेम फॉर्मूला यूज करते हैं. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला है समेशन xi p of xi. This is the formula for expected value. Second, that is variance. Variance of x, which is represented by v of x, is given by the formula e of x square minus e of x whole square. This is the formula for variance of x. Now this e of x whole square, ये जो है यहाँ पर जो हम e of x कैलकुलेट करेंगे उसी का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको e of x होल स्क्वायर मिलेगा. बट e of x square, that is e of x square, this is nothing but summation xi square p of xi.
सो इस तरह से हम e of x square निकालते हैं, उसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके वी फाइंड v of x. So these are two formulae under expected value and variance when that random variable x is the discrete random variable. Now we will be solving problems related with these two concepts. Now let's see first question, where we have to find e of x, that is expected value, and v of x, which is variance, for the given following PMF. PMF stands for probability mass function. So ये जो है ये probability mass function is given, that is value of random variable and corresponding probabilities are given. So we need expected value and variance. So सबसे पहले we will be writing formula. Now formula for expected value, that is e of x, is summation xi p of xi. Consider it as first one, and for variance it is e of x square minus e of x whole square. ये variance का formula है. Consider this one as second one. Now in this formula, this e of x square is simply summation xi square into p of xi. Now consider this as third one. Now according to the formulae we will construct a table. हम एक टेबल बनाएंगे एंड ये फॉर्मूले आपको बताएंगे कि आपको टेबल जो बनाना है उसके कॉलम्स क्या क्या होंगे. तो सबसे पहले सी these values of random variable are nothing but they are xi's. उनको हम xi से रिप्रेजेंट करते हैं. corresponding probability by p of xi. so ये जो पहले दो कॉलम्स है ये तो आपके क्वेश्चन में ही है. so -2, -1, 0, 1, 2 and p of xi 0.2, 0.3, 0.1, 0.15, 0.25. तो ये पहले दो कॉलम्स आपको क्वेश्चन से ही मिल जा रहे हैं, तो उनको हम एज इट इज लिखेंगे एंड उसके बाद ये फॉर्मूले आपको बताएंगे आपको और कौन कौन से कॉलम्स ऐड करने. तो टू गेट एक्सपेक्टेड वैल्यू वी नीड xi p of xi, मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू कॉलम्स xi p of xi लाइक दिस. तो इससे आपको मिल जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू. एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल गई तो वो यहाँ पर सब्सटीट्यूट हो जाएगी सेकेंड में, बट ई ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं है हमारे पास. तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आइदर यू कैन ऐड एक्स आई स्क्वायर एंड देन एक्स आई स्क्वायर पी ऑफ एक्स आई, और सिंपली यहाँ पर हमारे पास एक्स आई पी ऑफ एक्स आई है तो जस्ट अगर हमने फर्स्ट और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो अभी भी हमें एक्स आई स्क्वायर पी ऑफ एक्स आई मिल जाएगा. तो इस तरह से हम नेक्स्ट कॉलम ऐड करेंगे. तो नाउ लेट्स फाइंड एक्स आई पी ऑफ एक्स आई, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट. सो हियर इट इज -0.4, दिस इज -0.3, 0 into anything is 0, this is 0.15, 2 into 0.25 is 0.50. so this is xi into p of xi. now xi square p of xi के लिए we will just multiply first and third column. So minus minus plus and this will give you 0.8. Then again positive 0.3. This will be 0. This is 0.15 and this is simply 1. So this is how we will get xi square p of xi. Now we need summations. So at the end we will write total here and we need total of third and fourth column. So third and fourth column का ही हम total find out करेंगे. इनको हमने add करना है. Now minus minus is plus. This will give you minus 0.7. This is 0. And here addition of these two will give you 0.65. So minus 0.7 plus 0.65 is simply minus 0.05. This is what we will get addition. Now here इनका addition भी हमें चाहिए, तो this is 1.1. Now 1.1 इसका addition है 1.1, 1.1 plus 1 is 2.1, 2.1 plus 0.15
is 2.25. Okay, now we will substitute. So सबसे पहले जो है वो substitution होगा in first one. तो जब आप फर्स्ट वन में सब्सटीट्यूशन करोगे तो आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू मिलेगी यहाँ से, लाइक दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज द समेशन. So expected value is minus 0.05. So this is the answer for expected value. Now substituting in, सबसे पहले we will substitute in third one to get e of x square. So e of x square, see it is summation xi square p of xi, which is here. So it is 2.25. Now substituting for e of x and e of x square in third one. Sorry, not in third, in second one. So this is second equation that will give you variance v of x. So v of x will be now e of x square is 2.25 minus e of x whole square. E of x जो है वो है minus 0.05 उसका square, like this. So it is 2.25 minus, whether number is positive or negative, its square is always positive. So 0.025 0.05 का square होगा 0.0025. Now we will subtract, इसे हम subtract करेंगे. So 2.25 minus 0.0025. So this will give you 5, 9 minus 2, 7, 4, 2, 2. So answer is 2.2475. So this is the variance. So students, whenever probability mass function means this corresponding probability distribution is given, this is how we find expected value and variance for discrete random variable.